جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں 9 سال بعد بھی صحت کی سہولیات کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ ہسپتال میں ہیپاٹائٹس بی سی سمیت دیگر ٹیسٹوں کے لیے پی سی آر اور گردہ کے مریضوں کے لیے ڈائلیسس مشینوں کی سہولت موجود نہیں۔ علاقہ مکین علاج کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں جنرل ہسپتال غلام محمد آباد میں 9 سال بعد بھی صحت کی سہولیات کی فراہمی ممکن نہ ہو سکی۔ ہسپتال میں ہیپاٹائٹس بی سی سمیت دیگر ٹیسٹوں کے لیے پی سی آر اور گردہ کے مریضوں کے لیے ڈائلیسس مشینوں کی سہولت موجود نہیں۔ علاقہ مکین علاج کے لیے دیگر ہسپتالوں کا رخ کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں عزادار حسین سے۔ جی بتائیے گا۔ جنرل ہسپتال غلام آباد جسے ٹیچنگ ہسپتال کا درجہ دیا گیا ہے، تو یہاں پہ اس وقت صحت سہولیات کا فقدان ہے۔ پی سی آر مشین نہیں ہے ہیپاٹائٹس بی سی کی اسکریننگ کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ ڈائلیسس یونٹ نہیں ہے، جس کے سبب گردے کے امراض میں مبتلا مریضوں کو ڈائلیسس کروانے کے لیے دیگر اسپتالوں میں جانا پڑ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اے ایم ایس ٹیچنگ ہسپتال فیصل آباد غلام آباد ڈاکٹر عمر نوید موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیں کہاں سے کروا رہے ہیں پی سی آر؟ جی ہمارے ہاسپٹل میں اس وقت جو الائزہ اور پلین جو ہیپاٹائٹس بی اور سی کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ جو پیشنٹ جس میں ہیپاٹائٹس بی اور سی پازیٹیو آ جاتا ہے، تو پنجاب گورنمنٹ کا جو ایک اسپیسیفکلی لیور پروٹیکشن کے لیے ایک یونٹ بنا ہوا ہے، جس کا اوپر ہمارے 15 نمبر میں وہاں پہ ہمارا عملہ بیٹھا ہوا ہے، اور وہ ہاسپٹل کا جو بھی ایسا پیشنٹ جو آتا ہے جو ہیپاٹائٹس سی اور بی کا پازیٹیو ہوتا ہے، اس کا ہم سیمپل جو ہے نا لے کے لاہور بھجوا دیتے ہیں، اور اگر کسی کا ہیپاٹائٹس سی یا بی پازیٹیو آ جائے تو پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کا فری ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، جو تقریباً 3 مہینے تک چلتا ہے۔ اور ڈائلیسس مشینوں کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جی ہمارے ہاسپٹل میں کیونکہ ڈائلیسس یہاں پہ ابھی نئی یونٹ شروع ہوا، کیونکہ یہاں پہ پراپر جو شروع سے گردے کے ڈپارٹمنٹ یہاں پہ نہیں ہے، اب انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ پروسیس اس کا شروع کر دیا گیا ہے۔ جلدی یہاں پہ ڈائلیسس مشین جو ہے وہ آ جائے گی۔ پہلے ہم اس کو آئی سی یو میں ڈائلیسس مشین لگائیں گے، تاکہ آئی سی یو میں جو ہمارا مریض ہوتا ہے اس کا ڈائلیسس ہو سکے، وہ یہاں سے شفٹ نہ کرنا پڑے، اور اس کے بعد پھر جنرل ایک ڈائلیسس یونٹ علیحدہ سے قائم کیا جائے گا۔ پی سی آر سیمپل لاہور بھجوائے جا رہے ہیں، تاہم یہاں پہ ڈائلیسس کا یونٹ نہیں ہے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں پہ ڈائلیسس کا یونٹ کیا میں عمل میں لایا جا سکے۔ جی عزادار حسین اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ اب آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ کے باہر ناجائز پارکنگ سٹینڈ قائم، پیڈز ایمرجنسی کا گیٹ مریضوں ہسپتال کے باہر مین روڈ پر رکشہ اور ٹیکسیوں کی بھرمار ہے۔ رش کے باعث مین گیٹ کے سامنے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ناجائز پارکنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال ٹوبہ کے باہر ناجائز پارکنگ سٹینڈ قائم ہے۔ پیڈز ایمرجنسی کا گیٹ مریضوں کے لیے بند کر دیا گیا۔ ہسپتال کے باہر مین روڈ پر رکشے اور ٹیکسیوں کی بھرمار ہے۔ رش کے باعث مین گیٹ کے سامنے گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ شہریوں نے انتظامیہ سے ناجائز پارکنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں احمد ندیم سے۔ جی احمد۔ جی بالکل، ٹوبہ ٹیکسنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال کی پیڈز ایمرجنسی کی طرف سے ہاسپٹل کا جو گیٹ ہے وہ مریضوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ گیٹ بند ہونے سے جو ہے وہ بچوں کی ایمرجنسی میں آنے والے جو مریض ہیں اور ان کے لواحقین شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ سڑک کے دوسری طرف جو ہے وہ نجی میڈیکل سٹور موجود ہیں۔ بچوں کے لیے جو ہے وہ میڈیسن لانے کے لیے جو ہے وہ مریضوں کو ہسپتال کے دوسرے سرے سے جو ہے وہ باہر جانا پڑتا ہے، اور ادویات جو ہے وہ خریدنے پڑتی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وہ اس گیٹ کو تو بند کیا ہی گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ پرائیویٹ جو ہے وہ سٹینڈ بنا دیا گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ رکشے موجود ہیں، مختلف کمپنیوں کے جو ہے وہ پرائیویٹ کمپنیوں کے سٹال یہاں پر موجود ہیں، جس کے بعد جو ہے وہ مریضوں کو اور ان کے لواحقین کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ صحت کے جو ہے وہ اعلیٰ افسران کی جانب سے جو ہے جو عرصہ 2 سال سے قبل جو ہے وہ یہاں پر سیکیورٹی رسک کی وجوہات پر جو ہے اس گیٹ کو بند کیا گیا تھا، تاہم جو ہے وہ اس پر مریض جو ہیں وہ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ مریضوں کا یہ کہنا ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ اس گیٹ کو جو ہے وہ مریضوں کے لیے کھلوایا جائے، تاکہ جو ہے وہ بعض اوقات مریضوں کے ساتھ آنے والی جو خواتین ہیں ان کو پریشانی کا سامنا ہوتا ہے۔ مریضوں نے جو ہے وہ محکمہ صحت کے علاوہ کام سے مطالبہ کیا کہ اس پرائیویٹ سٹینڈ کو یہاں سے ختم کیا جائے، اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس دروازے کو کھلوایا جائے تاکہ مریضوں کی مشکلات کم ہو سکیں۔ جی احمد ندیم اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں مراکز صحت کی تعمیر و مرمت کے لیے دوسرے مرحلے کے آغاز کی تیاری۔ محکمہ بلڈنگ تخمینہ لاگت رپورٹ پنجاب حکومت کو بھجوائے گا۔ دوسرے مرحلے میں 28 بنیادی مراکز صحت اور 4 دیہی مراکز صحت کی تعمیر و مرمت کی جائے گی۔ پہلے مرحلے میں 24 بی ایچ یو اور 5 آر ایچ سیز کی تعمیر و مرمت پر 60 کروڑ روپے خرچ کیے گئے تھے۔
अपडेट कर रहे हैं टोबा टेक्सिंग में मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत के लिए दूसरे मरहले के आगाज़ की तैयारी। महकमा बिल्डिंग तखमीना लागत रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा। दूसरे मरहले में 28 बुनियादी मराकज़ सेहत और 4 देही मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत की जाएगी। पहले मरहले में 24 BHU और 5 RHCs की तामीर और मरम्मत पर 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। मराकज़ सेहत की तामीर और मरम्मत दूसरे मरहले के आगाज़ की तैयारी है। महकमा बिल्डिंग तखमीना लागत रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को भिजवाएगा। दूसरा मरहला 28 BHUs और 4 RHCs की तामीर और मरम्मत की जाएगी। पहले मरहले में 24 BHU और 5 RHCs की तामीर और मरम्मत की गई। पहले मरहले में तामीर और मरम्मत के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अब आपको बताएं, टेक्सटाइल शोबा की बरामदात में 9.51% इजाफा। गुज़िश्ता माली साल 4 अरब 12 करोड़ डॉलर के मुकाबले 4 अरब 52 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड। माहानावार टेक्सटाइल बरामदात 17.92% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। टेक्सटाइल बरामदात में नेटवेयर सेक्टर पहले, रेडीमेड गारमेंट्स दूसरे, जबकि बेडवेयर तीसरे नंबर पर रहा। अपडेट कर रहे हैं, टेक्सटाइल शोबा की बरामदात में 9.51% इजाफा। गुज़िश्ता माली साल 4 अरब 12 करोड़ डॉलर के मुकाबले 4 अरब 52 करोड़ डॉलर रिकॉर्ड किया गया। इसी पर मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, अगर बात करें टेक्सटाइल बरामदात के हवाले से 9.51% का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये समाही रिपोर्ट है। 3 महीनों में गुज़िश्ता साल देखें तो गुज़िश्ता माली साल में 4 अरब 12 करोड़ डॉलर की जो बरामदात थी वो बढ़ते हुए 4 अरब 52 करोड़ डॉलर पे पहुंच गई, यानी कि 4.5 अरब डॉलर पे को तजावत करती नजर आ रही है। सबसे टॉप पे नेटवेयर डिपार्टमेंट नजर आया है, 14.13% इजाफा हुआ है। 1 अरब 11 करोड़ डॉलर से बढ़ते हुए 1 अरब 26 करोड़ डॉलर तक बरामदात चले गई है, जबकि रेडीमेड गारमेंट्स 23% इजाफे से 80 अरब डॉलर से 80 करोड़ डॉलर से 99 करोड़ डॉलर पे गई है। आगे ऐसी बात करें बेडवेयर की 13.31% इजाफा हुआ है, 70 करोड़ डॉलर से बढ़ते हुए 79 करोड़ डॉलर जो है वो बरामदात पहुंच चुकी है। अगर महानावार भी देखें तो महानावार भी 29% जो है नेटवेयर में इजाफा नजर आया है, जबकि 17% मजमूई तौर पर टेक्सटाइल बरामदात में इजाफा है। 1 अरब 36 करोड़ डॉलर से बढ़ते हुए बरामदात 1 अरब 60 करोड़ डॉलर पर पहुंच चुकी है। जी मोहम्मद बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। मोबाइल फोन्स की दरामदात तनज़्ज़ुली का शिकार। पहले समाही में सालाना बुनियादों पर मोबाइल फोन्स की दरामद में 19% कमी। मोबाइल फोन के कारोबार से जुड़े ताजर परेशान। कहते हैं पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर के तमाम प्लांट बंद होने से कारोबार तबाह हो रहा है। अपडेट कर रहे हैं, मोबाइल फोन्स की दरामदात तनज़्ज़ुली का शिकार। पहले समाही में सालाना बुनियादों पर मोबाइल फोन्स की दरामद में 19% कमी। मोबाइल फोन के कारोबार से जुड़े ताजर परेशान। कहते हैं पाकिस्तान में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर के तमाम प्लांट बंद होने से कारोबार तबाह हो रहा है। मजीद जानते हैं शिराज भट्ट से। जी शिराज। गुज़िश्ता 3 महीने से मुसलसल मोबाइल फोन की इंपोर्ट जो है उसमें कमी वाक़ हो रही है और पहले समाही में 19% जो है वो मजीद मोबाइल फोन की इंपोर्ट कम हुई है सालाना बुनियादों पर, अगर उसका कंपैरिजन, उसका मुआवजा किया जाए। हमारे साथ आतिफ साहब मौजूद हैं जो कि लोकल सतह के ऊपर कारोबार करते हैं मोबाइल फोन्स का और इंपोर्ट भी करते हैं। उनसे जानते हैं कि वो मोबाइल फोन के बिजनेस, उसके कारोबार और उसके डाउनफॉल के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। आतिफ साहब बताइएगा, इंपोर्ट कितनी कम हुई है और इससे क्या नुकसान होगा? इंपोर्ट 19% कम हुई है, ठीक है। इसकी वजह से मोबाइल हम जब अगर पाकिस्तान में बनता हमें काफ़ी फ़र्क पड़ना था। इंपोर्ट कम हो रही है, हमारी सेल भी कम हो रही है, ठीक है। अगर पाकिस्तान में बनता मोबाइल तो हम इधर से परचेज़ करके हम सस्ता सेल करते, बाहर से हमें महंगा पड़ता है। इसकी वजह से हमने सोचा था कि ये नया मॉडल आएगा 16 प्रो, 16 आएगा आईफोन, इससे हमारी सेल बढ़ेगी। उसे लेने क्या कुछ देखने भी नहीं आता, ठीक है। यानी मोबाइल फोन एसेसरी सेल होती है? मोबाइल फोन एसेसरी सेल हो रही है। मोबाइल डिब्बा पाक तो लेने ही कोई भी नहीं आता। उसकी वजह पता क्या है, ये महंगा हो गया है और दूसरा क्या कहते हैं, यूज सेल करने आता है, अपनी जरूरत पूरी करता है। ठीक है, मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो कम होता चला जा रहा है। उसकी सबसे बड़ी जो एग्जाम्पल, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि इंपोर्ट जो है वो मुसलसल कम हो रही है और हमारा, जैसा आतिफ साहब ने कहा कि हमारा 100% दारोमदार जो है वो इंपोर्ट के ऊपर है। ऐसे में ऐसी खबरें सुनना जो है वो मोबाइल फोन का कारोबार करने वाले ताजर हजरात के लिए अच्छी खबरें नहीं है। शिराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी हालात से तंग ताजरों का हुकूमत से कारोबारी तबके के लिए साजगार माहौल का मुतालिबा। कहते हैं छोटे ताजर के लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका।
हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए अमली इकदामात करे। कारोबारी हालात से तंग ताजरों का हुकूमत से कारोबारी तबके के लिए साजगार माहौल का मुतालिबा। कहते हैं छोटे ताजर के लिए कारोबार करना इंतहाई मुश्किल हो चुका। हुकूमत मईशत की बेहतरी के लिए अमली इकदामात करे। मजीद जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की ताजर बरादरी जो है वो इस वक्त कारोबारी हालात की वजह से शदीद परेशान है। ताजरों का कहना है कि इस वक्त कारोबार जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतासर है। हुकूमत को ऐसी हिकमत अमली तैयार करनी चाहिए कि जिससे कारोबार का पहिया चल सके। बिलालगंज मार्केट के चेयरमैन हमारे साथ मौजूद हैं, हाजी काशिफ, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी हाई साहब, बताइएगा क्या इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात हैं ताजर बरादरी के कारोबारी पॉलिसियों के हवाले से? जी बिल्कुल, हम ये समझते हैं कि हुकूमत को चाहिए कि अपने जो ज़ाती इख्तलाफात है, ज़ाती जो लड़ाइयाँ हैं, ये 26वीं तरमीम है, ये 25 की तारीख है, इनको छोड़ के जो महंगाई का कम होने का इनके वज़रा जो हैं आए दिन टीवी पे बैठ के कहते हैं 37% के 11% पे आ गई है, तो हमें दिखाया जाए कि कौन सी चीज़ है जो अब 11% के हिसाब से अवेलेबल है हमें महंगाई की। ये रेट लिस्ट पे कोई रेट होता है और चीज़ किसी और रेट पे मिल रही थी। क्या है, इंतज़ामिया, रिश्वतखोर माफिया जो है, ये करप्ट माफिया जो है, यही रेटों को स्टेबल होने नहीं दे रहा। अच्छा, बिल्कुल ये बात आपने सुनी। जैसे कि इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो हुकूमती पॉलिसियां हैं वो बेहतर होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो चेक एंड बैलेंस है वो होना चाहिए ताकि महंगाई की जो कम शरह हो रही है वो नज़र भी आनी चाहिए और कारोबार जो है वो भी आसानी से चल सके। बहुत शुक्रिया फजील अहमद। टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का तोड़ निकाल लिया गया। जिला के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो आटे का थैला भिजवाया जाएगा। 85 यूटिलिटी स्टोर्स पर 1200 थैले भिजवाए जाएंगे। 5 किलो आटे का थैला 550 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं टोबा टैक्सिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की किल्लत का तोड़ निकाल लिया गया। जिला के तमाम यूटिलिटी स्टोर्स पर 5 किलो आटे का थैला भिजवाया जाएगा। 85 यूटिलिटी स्टोर्स पर 1200 थैले भिजवाए जाएंगे। 5 किलो आटे का थैला 550 रुपए का फरोख्त किया जाएगा। मजीद जानते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग के तमाम तर 50 यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह से आटा मौजूद ही नहीं है। शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिस पर यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन इंतजामिया ने फैसला किया है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर अब 5 किलोग्राम आटे का थैला मुतारिफ करवाया जाएगा। लेकिन शहरी ये कहते हैं कि चीनी भी स्टोर पर महंगी है, आटा भी महंगा है, जिस पर हुकूमत उनको कोई रिलीफ फ्राहम करे। सब्सिडी पहले ही जो है वो नहीं मिल रही है। इस पर शहरी के कहते हैं, उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। आप बताइएगा कि आप क्या लेने के लिए आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो चीज़ें कैसी हैं यहाँ पे? मैं जी टोबा टैक्सिंग दार हैसी हाँ, तो मोहल्ला गौशाला से आया हूँ। मैं जहाँ से चीनी आटा लेने के लिए आया था, जो जहाँ नहीं मिलती, आगे सस्ती चीज़ें लभती थी वो नहीं लभी थी। तो देख लो, मैं अपनी व्हीलचेयर पर आया हूँ, तो यहाँ नहीं लभी। मैं आ तीजी चौथी बारी मैं आते घेरा ला लिया वा, तो मैनू कोई चीज़ नहीं लभी। तो यार दसो, हुकूमत से अपील आ ते आ चीज़ नूं सस्ती करते जावे, ते गरीब बंदा कहाँ से खाए? जब जहाँ से चीज़ नहीं ना सस्ती लभनी, वो कितने जाके खाए? बिल्कुल, शहरी परेशान है। उनका ये कहना है कि आटा नहीं मिल रहा, उनको कई चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। मौजूद है उसकी कीमत ज़्यादा है, कीमतों को कम किया जाए ताकि बआसानी वो यूटिलिटी स्टोर से अशिया खरीद सकें। और दूसरी जानिब सस्ती चीनी और सस्ता आटा ना मिलने की वजह से यूटिलिटी स्टोर्स की रौनक। मुबशिर हसन नकवी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। विफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों में आयद जुर्माने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया। मुकर्रर तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया गया। मुकर्रर तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5% सरचार्ज लगाया जाएगा। मुकर्रर तारीख में 3 दिन से ज्यादा रोज गुजरने पर 10% सरचार्ज आयद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे अवैस अली से। जी अवैस। जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बिजली के बिलों पर आयद जुर्माने की पॉलिसी को तब्दील कर दिया है। मुकर्रर तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर 5 और 10% सरचार्ज लगा दिया गया। मुकर्रर तारीख के 3 दिन बाद अदायगी पर बिल का 5% सरचार्ज लगाया जाएगा। मुकर्रर तारीख में 3 दिन से ज्यादा रोज गुजरने पर 10% सरचार्ज के साथ सार्फिन को बिजली के बिल जो है वो अदा करना पड़ेंगे। नेपरा ने मुकर्रर तारीख के बाद जमा होने वाले बिल्स पर आयद सरचार्जेस को जो है वो स्लैब्स में तब्दील कर दिया है। इससे कबल बिजली के बिलों पर 10% LPS से चार्ज किया था। मुकर्रर तारीख में 3 दिन की तोसी पर सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा। फेस्को के सार्फिन को ऑनलाइन बिलों का इजरा
किया जाएगा। सार्फिन मुतलका रेवेन्यू दफातर से मुकर्रर तारीख में तस्वीर और ऑनलाइन बिल्स जो है वो जारी किए जाएंगे। इसी हवाले से जो है वो मौजूदा हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन पर जो है वो मजीद जो है वो बोझ डाल दिया है। 5 रोज के बाद जो है वो सार्फिन को डबल जुर्मानों के साथ बिजली के बिल अदा करना पड़ेंगे। जी, अवैस अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। चिन्योट के सरकारी स्कूलों में फंड्स की कमी, गवर्नमेंट अल इस्लाह हाई स्कूल को 7 लाख से जायद का बिजली का बिल आ गया। फेस्को ने बिल की अदम अदायगी की सूरत में मीटर उतारने का दे दिया। स्कूल हेड ने डीईओ सेकेंडरी से फंड्स मांग लिए। तफसीलात जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर। स्कूलों में फ़ंड्स की किल्लत का जो अफसरान है, जो स्कूलों के सरबराहान है, उन्हें सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता दिनों हमने बताया कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में भी फ़ंड्स की कमी थी, अब गवर्नमेंट अल इस्लाह स्कूल में भी फ़ंड्स की शदीद कमी है। यहाँ के हेडमास्टर हुसैन अहमद मदनी साहब की तरफ से डीओ सेकेंडरी को एक ख़त लिखा गया जिसमें डिमांड की गई है कि एनएसबी और एफटीएफ जो है उसका उनके पास पैसे नहीं हैं अकाउंट में, तो उन्हें जो है वो बिजली का बिल अदा करने के लिए पैसे जो है वो दिए जाएँ। 7 लाख से ज़ायद का बिल है और पिछले 5-6 महीनों से बिल जो है वो अदा नहीं करवाया गया, जिस वजह से स्कूलों के जो सरबराहान है उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। हुसैन अहमद मदनी साहब स्कूल हेडमास्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कितने महीनों का ये बिल है और क्या क्या मसाइल आ रहे हैं फंड्स ना होने की वजह से? तकरीबन 6 महीने का बिल है ये, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं। दूसरे नंबर पे ये तकरीबन एनएसबी जो हमारे पास आता है वो इसके लिए नाकाफ़ी है। अब एनएसबी जो है वो हमारे इस अकाउंट में बिल्कुल नहीं है। एनएसबी ना होने की वजह से फिर मैं इस बिल को जमा नहीं करवा सकता। तो मैंने इसके लिए अपना महकमे को तकरीबन 3-4 दफ़ा रिमाइंड भी करवा चुका हूँ कि मेहरबानी करके मुझे इसका फ़ंड दिया जाए ताकि मैं इस बिल को जमा करा सकूँ, लेकिन फ़ंड अभी तक वो जारी नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये बिल जो है वो नहीं जमा कराया जा सका। बिल्कुल जी, हुसैन अहमद मदनी साहब हमारे साथ मौजूद थे, स्कूल हेडमास्टर हैं। उनका इस सिलसिला में कहना है कि बार बार अफसरान को आगाह किया गया है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी बंदा उनका मसला जो है वो हल करने को तैयार नहीं है। 5 महीनों का तकरीबन बिल है और बिल ना अदा होने की वजह से उन्हें परेशानी है। तो हुकूमत से और इसके साथ साथ सीओ एजुकेशन से मुतालबा किया जा रहा है कि फ़ंड्स की फराहमी के लिए इकदाम किए जाएँ। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में स्पोर्ट्स सेक्टर की तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू करने का फैसला। महकमा खेल अपने डिवीजन भर की तरक्याती स्कीमों के टेंडर तलब कर लिए। अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर 7 करोड़, क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर 9 करोड़ रुपए लागत आएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान। महकमा खेल पंजाब की जानब से फैसलाबाद में मुख्तलिफ स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की बहाली के हवाले से टेंडर तलब किए गए हैं और 22 अक्टूबर को जो है वो टेंडर की जो टेक्निकल बिड तलब की गई है, जबकि 4 नवंबर को फाइनेंशियल जो बिड वो तलब की गई है। बात करें तो फैसलाबाद में अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बहाली पर 7 करोड़ लागत आएगी। इसी तरह बात करें क्रिसेंट स्पोर्ट्स जो कॉम्प्लेक्स है, 9 करोड़ लागत के टेंडर तलब किए गए हैं। फैसलाबाद में पिच नंबर 2 में फ्लड लाइट्स और दीगर बहाली के कामों पर 17 करोड़ लागत आएगी और इसी तरह गुलाम अहमदाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की स्कीम पर 6 करोड़ लागत आएगी और बात करें समुंदरी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर 4 करोड़ 39 लाख लागत आएगी। इसी तरह फैसलाबाद के चक नंबर 71 जीबेसली में फुटबॉल ग्राउंड की तमीर पर 10 करोड़ लागत आएगी और इसी तरह अल-फतेह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में टेबल टेनिस और स्क्वाश की जो दीगर जितने भी ग्राउंड्स और दीगर जितनी भी तनसीब के हवाले से जो तमीराती काम है उस पर 8 करोड़ लागत आएगी और तमाम तरक्याती कामों के जो PMU स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट काम सर अंजाम देगा और फैसलाबाद और डिवीजन से जितनी भी स्पोर्ट्स सेक्टर की स्कीमें हैं उसके टेंडर तलब कर लिए गए हैं। जी इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद की तरह झंग में भी 56 लाख रुपए की लागत से खेलों के मंसूबे पर काम शुरू करने का फैसला। माई हीर कॉम्प्लेक्स की बहाली, होटल्स की तामीर समेत हवेली बहादुर शाह में नया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मंसूबे का हिस्सा। नवंबर में टेंडर्स किए जाएंगे। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान। जी बिल्कुल, झंग में भी खेलों के फ़रोग के लिए जो है वो खेलों के बड़े मंसूबों के ऊपर जो है वो काम शुरू होने वाला है। इस मकसद के लिए जो है वो नवंबर में टेंडर खोले जाएंगे। हम इस वक्त माई हीर कॉम्प्लेक्स में मौजूद हैं। माई हीर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के लिए मजमूई तौर पर 45 करोड़ रुपए से ज़ायद के जो है वो मंसूबे हैं। 19 करोड़ रुपए की लागत से जो है वो खिलाड़ियों के लिए और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके लिए जो है वो हॉस्टल्स बनेंगे। मेरे अकब में जो इस वक्त देख रहे हैं आप बिल्डिंग, बहुत बड़ी बिल्डिंग है, स्पोर्ट्स जिम्नेजियम है, माई हीर स्पोर्ट्स जिम्नेजियम के नाम से जाना जाता है। 10 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत से इसकी बहाली होगी। दूसरी जानब भी दिखाइएगा, ये माई हीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसकी भी बहाली के लिए जो है वो हुकूमत की जानिब से जो है वो 7 करोड़ रुपए रखे गए हैं।
इसके साथ साथ इससे अगली जानब जो स्पोर्ट्स ग्राउंड है और ख़ुसूसी तौर पर क्रिकेट स्टेडियम के नाम से जो है वो जाना जाता है, उसके लिए भी है, उसकी बहाली के लिए भी 7 करोड़ रुपए के फंड्स जो हैं वो हुकूमत की जानिब से जो है वो रखे गए हैं। और इसके अलावा हवेली बहादुर शाह में 11 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत से अपनी नौयत का पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है वो बनने जा रहा है। तवक्को की जा रही है कि इन मंसूबों के टेंडर्स जो हैं वो नवंबर के पहले हफ्ते में हो जाएंगे, जिसके बाद इन मंसूबे के ऊपर जो है वो काम शुरू होगा और झंग में खेलों को फिरोग मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया रमजान मिर्जा। लोकल गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए अहम इकदाम, सरकारी अराजी का कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने मकामी हुकूमतों से जायदादों का डेटा तलब कर लिया। चीफ अफसरान 1 माह में डेटा शेयर करने के पाबंद होंगे। मजीद जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी बताइएगा। मुकामी हुकूमतों के हवाले से तो उनके रेवेन्यू में इजाफा करने के लिए अहम फैसला किया गया है कि यहाँ पर जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनका कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ाने का फैसला किया गया। तो सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने चीफ अफसरान से ये डाटा तलब किया गया कि बताया जाए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जितनी भी दुकानें बनाई गई हैं तो उनके कमर्शियल प्लाजे बनाने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी बताया गया था कि वो पटवारियों के साथ मिलकर ऐसा डाटा बनाएंगे कि इसमें एक तो ये इनकी जो अराजी जिसका कमर्शियल इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि उससे रेवेन्यू ज़्यादा आएगा, उसको किराए पर भी दिया जा सकता है, लीज पर भी दिया जा सकता है। और इसी तरह जो रूटीन की प्रॉपर्टी भी कमर्शियल जगह पर आ गई है तो उनके कमर्शियल हिसाब से उसकी असेसमेंट वैल्यूज़ की जाएंगी ताकि उसका रेवेन्यू बढ़ाना मुमकिन हो सके। तो इस सिलसिले में चीफ अफसरान को कहा गया है कि वो तमाम तर डाटा जो है वो शेयर करें ताकि इसका कमर्शियल इस्तेमाल बढ़ाया जा सके। और इसी के साथ साथ रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी इसके साथ एंगेज किया जाएगा ताकि दोनों डिपार्टमेंट मिलकर पहले सरकारी अराजी की आइडेंटिफिकेशन कर सकें, फिर उसके बाद ये जायजा लिया जा सके कि यहाँ पर कमर्शियल कारोबार हो सकता है या नहीं हो सकता है। अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जड़ांवाला इंतजामिया की अदम तवज्जो, शहर में तजावुजात की भरमार। लंडा बाजार, मदनी बाजार, मस्जिद बाजार, मोची बाजार से पैदल गुजरना भी मुहाल। खरीदारी के लिए आने वाली खवातीन और शहरी शदीद परेशानी में मुब्तला। तजावुजात के बायस बाजारों में ट्रैफिक जैम रहना मामूल बन गया। शहरियों ने कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद से नोटिस का मुतालिबा कर दिया। फैसलाबाद पुलिस में मेरिट की धज्जियां उड़ने लगी। सीनियर नजरअंदाज, अफसरान की जूनियर पर नवाजिशात। 44 में से सिर्फ 12 थानों में इंस्पेक्टर बतौर SHO तैनात, जबकि 32 थानों में सब इंस्पेक्टर्स को SHOs तैनात किया गया। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब, सीनियर रैंक अफसरान क्यों नजरअंदाज किए जा रहे हैं? बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस में इंस्पेक्टर्स को तैनाती के दौरान बुरी तरह नज़रअंदाज किया जाने लगा है। फैसलाबाद में 85 से जायद इंस्पेक्टर्स मौजूद होने के बावजूद अहम सीटों पर उनकी तैनाती अमल में नहीं लाई जा रही। फैसलाबाद के 44 थानों में से सिर्फ 12 ऐसे थाने हैं जहां पर इंस्पेक्टर्स को बतौर SHO तैनात किया गया है, जबकि 32 ऐसे पुलिस स्टेशन हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर्स को बतौर SHO तैनाती दी गई है। इसी तरह फैसलाबाद के 44 में से सिर्फ 8 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जिनमें इंस्पेक्टर्स को बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है, जबकि 36 ऐसे थाने हैं जहां पर सब इंस्पेक्टर्स को बतौर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया है। इसी तरह एस्टैब्लिशमेंट ब्रांच, रीडर ब्रांच समेत अहम ब्रांचों में भी सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की तैनाती की गई है और इंस्पेक्टर्स को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। जबकि फैसलाबाद में 4 ऐसे भी पुलिस स्टेशन मौजूद है जहां पर इंस्पेक्टर को इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सब इंस्पेक्टर SHOs के मतहत तैनात किया गया है। इंस्पेक्टर्स को अहम सीटों पर तैनात नहीं किया जाता। सब इंस्पेक्टर्स हत्ता के जूनियर तरीन सब इंस्पेक्टर्स को फैसलाबाद के थानों में SHO और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के तौर पर तैनात किया जा रहा है। जी।